Good evening, guys. Hope you all are healthy, happy, and fine. I want to share some insight that uh, I don't know, maybe it will sound good or sound bad. Previous 8 years, we are trying to escape out white sugar, white salt, and all the white, what do you call, barley, and all the bad food which I regularly mention, and junks. But today, my father had saw some video in YouTube, and he had called me and general greeting after 1 or 2 minutes. I was asking, I have one question. Can you explain me what is the insights? I said, okay, tell me. If there is a possibility, definitely I'll explain it. I was asking that he saw some shorts in YouTube that Mr. Akshay Kumar will not eat uh, after 6:30. Mr. Shahrukh Khan is eating 1 meal in a day. Mr. Manoj Vajpayee is not eating after 3:40. Kitchen is closed after 4:30 or 5:30 every day from previous 16 years. And I was just listening to uh, what he was telling. What are the insight he is trying to give me? And I am just thinking that previous 10.5 years we are trying to kept out the white sugar, refined white sugar, and maida, and all are the junk and processed food. I don't know, but somehow YouTube Shorts had created some good awareness in my family that my father had saw that video and he had called to me and he was taking the insight that maybe this sounds good or bad. I had said, yes, Papa, it is going good. Mr. Akshay Kumar sir is not eating food after 6:30 or 6 o'clock. Moreover, he has shared some YouTube in shorts that Mr. Manoj Vajpayee sir is telling that last 16 years they are not eating the night dinner. And Mr. Shahrukh Khan, he take only 1 meal in a day. And moreover, my father was telling his POV that seeing that video, he got insights that let's try. We should also try to adopt some good and healthy life. And he was telling that I don't know how TV and media industry is more getting more conscious about their health and blood related abnormality. Moreover, that he was telling that we are trying to keep out white sugar, white salt in our kitchen. I will be. I don't know how to say thank you to YouTube India and YouTube's in shorts, but some of the good content had helped directly or indirectly to our society, my family, and calorie deficit module is really good. The concept of 16 is into 8 means 16 hour of fasting and 8 hour of body resting, that will be more efficient, effective, and it will help your body metabolism and longevity supreme level. And my father was more happy to share his POV that he is also trying to keep out and he is also taking some resolution about 2024 that he will do some consumption of tea. That generally we means I will be less associated and less social in my family group. That snacks का party हो रहा है, चाय. पर्सनली मैं चाहता हूँ कि यार मतलब इंटरमीडिएंट फास्टिंग को डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए. लोग अपने किचन से वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट को मतलब डिस्कार्ड करें जितना जल्दी हो. प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड और कोको कोला और बूजी और फिजी ड्रिंक को जितना जल्दी हो निकाल के फेंके एज सुन एज पॉसिबल टू स्किप अवे. और अगर तुम चाह अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो अल्कोहल से बचो, एडल्ट्री से बचो. पर्सनली इट्स माई, मेरे को ऐसा लगता है कि यार सोसाइटी में देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी ह्यूमन. आई डोंट नो व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू मॉडल. तो सरकार इसको बंद करेगी नहीं करेगी, आपका अपना बुद्धि कितना काम करता है. It's depend upon your mindset, and I will be more happy that we are expecting the good health. I will be more happier if the mainstream society, which represent the growth of India, the growth engine of our country, that is 70 to 80% of middle class income community, which are more aspirational, which want to build something legacy. They want to build something good in the terms of education, nutrition, health, longevity. मैं चाहता हूँ यार मतलब अगर आप अपने ज़िंदगी से चीनी, नमक को और मैदा को निकाल करके फेंक देते हैं और इसके बाद जो लोकल, सीजनल, बॉइल्ड, बेक्ड और जीरो ऑयल फूड की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपका जो सोचने का नज़रिया है और बॉडी और ब्रेन और बॉडी का जो हार्मोन का रेगुलेशन है, दैट विल बी मोर परफेक्ट. मैं चाहता हूँ कि जो है ना प्रोसेस्ड फूड से जो है ना बच्चों को बचा करके रखा जाए, सोसाइटी को बचा करके रखा जाए. चाय एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि मतलब चाय पीने का
सुबह उठे, चाय पी रहे हैं, उसके बाद काम पे जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। आई डोंट नो, बट वट एवर वी आर एनालाइज द डेटा ऑफ ICMR and global regulatory healthcare, South Asian countries, especially India, China, Nepal, Bhutan, Pakistan, they have a major severe IBD, gastritis, blood hemorrhage, anal fissure. That is started from the consumption of tea and white labeled sugar, refined sulfated sugar. डे आफ्टर डे, शुरुआत में तो पता नहीं चलता, बट जब आप वेन यू आर क्रॉसिंग 30, 35 एंड 40, तो उसके बाद जो है ना सिम्टम दिखने लगते हैं। और मतलब IBD जो मतलब बीमारी है, या GIT बेस्ड जो भी बीमारी है, वो ना तो मल्टीविटामिन से कंट्रोल होता है, ना तो IBD और GIT बेस्ड जो एबनॉर्मलिटी है, डिजीज है, वो मतलब अगर आप मतलब यू आर मोर इन्फ्लुएंसिंग अबाउट टी और सुबह उठ के चाय पी रहे हो, तो आई एम 100% श्योर के मतलब डॉक्टर और एंटीबायोटिक दे विल ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे हो ना, वो लोग फेल करने वाले हैं। और इट्स रिक्वेस्ट यार, मतलब मेरे को लगता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप अपने लाइफ से वाइट सल्फेटेड शुगर, वाइट सॉल्ट और मैदा और प्रोसेस्ड एंड जंक निकाल देते हो ना, तो 80 to 95% जो आपका जो मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना, दैट बिकम परफेक्ट। डे बाई डे इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन डिफिशियंसी के डिजीज हो रहे हैं, इनफैक्ट सम ऑफ द पॉपुलेशन द एज ऑफ 18 to 25 पीपल्स आर गेटिंग लेस विटामिन डी इन इंडियन पॉपुलेशन। सीरियसली मैन, आई डोंट नो, बट आई फील वेरी सैड अबाउट। इनफैक्ट जब सीवियर GIT और IBD हो जाता है ना, तो आदमी परेशान होकर के हेमोरेज से, एनाल फीसर से और ब्लड स्टूलिंग से जो है ना परेशान होकर के जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आपको इंस्टेंट इलाज ही करेगा, दवाई ही देगा। बट थिंक अबाउट दैट यार, मतलब एक लाइन बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज भी अकॉर्डिंग टू ICMR इंडिया में 45 to 57% पॉपुलेशन आर कैलोरी डेफिशिएंट, माल न्यूट्रेटेड। तो टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर मील ले रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उठकर उनको चाय चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द माइंडसेट, बट आई फील वेरी, मतलब मेरे को ना देख के ना ऐसे लोगों पे तरस आता है। और फिर मैं सोचता हूँ यार, मतलब कैसे ये लोग मुंह उठा करके डॉक्टर के पास जाते हैं। यू डोंट डिजर्व यार, आई डोंट नो, बट मेरे को मतलब एक तो हमारे डॉक्टर इतने मेहनत करके मतलब इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, उसके बाद भी जो ROI है ना, पेशेंट कॉन्सेंट्रेशन। इनफैक्ट मतलब मेरे को तो यही लगता है कि चाय, प्रोसेस्ड फूड, बूजी एंड अल्कोहल ड्रिंक ना, मतलब एक इंटायर जनरेशन को तबाह कर दिया है, ठीक है। डॉक्टर और हेल्थ केयर कंपनी, फार्मा कंपनी, R&D लैब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ NGOs इन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन ओनली डू द ट्रीटमेंट एंड केयर। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स बचाव और सावधानी आपको ही बरतना होगा। आपको मतलब यू शुड बी मोर मेंटली एंड सोशली अवेयर। यार मतलब तुम जी कैसे रहो मेरे को नहीं पता, बट आई फील वेरी सैड। इंडिया में डे बाई डे IBD और GIT बेस्ड एबनॉर्मलिटी डिजीज बढ़ रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, और उसके बाद जो एडिक्शन है, वाइट शुगर और NAFL, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये बढ़ रहा है। आई फील वेरी सैड फॉर दैट, क्योंकि मतलब जिस जमाने में गरीबी था उस टाइम में ऐसा चीज़ नहीं था। अब गरीबी धीरे धीरे, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट और रिफाइंड सल्फेटेड शुगर और सॉल्ट एंड चाय, मतलब जो है ना द मोस्ट कंजम item in FMG segment or FMG sectors, or they are the major doing abnormality in blood level disease and hormone level disease. 97% R&D जो है ना, मतलब ब्लड रिलेटेड बीमारी में है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। आई डोंट नो हाउ मीन्स जो भी आजकल के जो TV और प्रिंट मीडिया है वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट white sugar and white salt and maida, they are the means they should be मतलब processed category में है, और processed category is not too good for your GIT and your human health. टू बी ऑनेस्ट, मैं यही चाहता हूँ कि यार मतलब जो भी हिंदुस्तान में 100 या 150 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से 70 से 75 करोड़ लोग जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, जो एस्पिरेशनल हैं, जो अपना भी घर चलाते हैं, देश का जो आर्थिक रफ्तार है वो भी चलाते हैं। आई हैव ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल। मैं चाहता हूँ कि यार आप जितना बेहतर हो सको, जितना आप स्वस्थ हो सकोगे, आप अपने फैमिली के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपने बच्चों के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने लाइफ से टॉक्सिसिटी और टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा। और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड डिफरेंट अमेरिकन फूड माफिया, दे हैड कलेक्टिवली मतलब दिमाग को कचरा कर दिया है। वो आपको मजबूर कर दिया कि कोको कोला पीना इज कूल, फेंटा पीना इज कूल, और स्टिंग पीना इज कूल, और चाय पीना और वाइट शुगर लेवल का फूड खाना दैट इज कूल। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ में से
और अपने लाइफ को जितना बेहतर बना सकते हैं बनाने का कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए कि जो है ना तब खाना प्रॉपर खाया जाए, घर का बना हुआ 0 ऑयल फूड खाने का कोशिश कीजिए। रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल अपने लाइफ से जितना जल्दी वो निकाल करके फेंकिए। अल्कोहल, एडल्ट्री, न्यूडिटी, क्लबिंग और कैफे मतलब कम तो बंद तो हो नहीं सकता, क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस, बट इसको कम किया जा सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी एक हफ्ता में 5 बार जा रहे हैं, कोशिश कीजिए 2 से 3 बार जाने का, 2 बार जाने का, 1 बार जाने का, क्योंकि किसी भी आदत को धीरे धीरे कम किया जाता है। और आई हैव ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन फॉर द मिडिल इनकम कम्युनिटी, जो मतलब हिंदुस्तान का ग्रोथ साइकिल है। और मैं चाहता हूँ कि ये सोसाइटी जो है ना कंजम्पशन से क्रिएटर बने, और कंजम्पशन से क्रिएटर बनना इट्स ए लॉन्ग मैराथन, और इसमें टाइम लगेगा। बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, स्किलफुल फ्रॉम कंज्यूमर टू क्रिएटर, इट्स ए लॉन्ग टर्म मैराथन। और इसमें खर्चा होगा आपका दिमाग, खर्चा होगा आपका बुद्धि, खर्चा होगा आपका टाइम। इसके लिए आपको कायदे से बैठ के पढ़ाई करना होगा, R&D करना होगा, और अपने से जो टॉप 0.1% जो क्रिएटिव लोग हैं उनके साथ बैठ के कायदे से सीखना होगा कि हाउ टू बिल्ड मैक्सिमम एसेट्स, हाउ टू बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग SOP, POV ऑफ स्केलेबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी। तो मेरे को लगता है कि मतलब जिस देश में 70 से 85 करोड़ लोग कंज्यूमर हो, अगर वो क्रिएटर बन जाएंगे तो आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन। और वो धीरे धीरे ही होगा, वो एक बार में मतलब वो अलादीन का चिराग या जादू की झप्पी है, ऐसा तो होने वाला है नहीं। टाइम लगेगा, आप सबको बैठ के कायदे से पढ़ना होगा, R&D करना होगा, इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है ना चीज़ों को स्किल बेस्ड बनाना होगा, R&D को बेटर करना होगा, और इट विल टेक टाइम, और इट्स ए लॉन्ग मैराथन। हर दिन उठ करके सीखना होगा, हर दिन उठ करके सीखना होगा, हर दिन उठ करके एफर्ट मारना होगा। मे बी मतलब थोड़ा सा ये बोरिंग है, क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया स्टिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी आर डेवलपिंग। और ये जनरेशन है, अगर इस जनरेशन ने कायदे से बैठ करके अपने स्किल्स पे, लर्निंग पे, स्केलेबिलिटी पे और R&D पे फोकस नहीं किया, तो वी विल लूज द गेम। नेक्स्ट आवर टारगेट और नेक्स्ट आवर कॉम्पिटिशन इज चाइना एंड USA. China had scalably manufacturing become more sound. Every day the data is coming. USA is more technically sound and technology wise. Right now it's our turn, and we have to convince our society that we have to create healthy society, healthy family, healthy young ones that can lead our economy, state, country from grassroots level. Or it will started from our family and individual. To be honest, I have a great respect and great expectation from each and every that 70 to 85 crore population who is considered the growth engine of India, जो खुद भी कमाते हैं और देश के लिए भी, देश को भी टैक्स डालते हैं, देश में भी टैक्स डालते हैं। ईच एंड एवरी सेगमेंट अलग अलग GST पोर्टल है और अलग अलग GST सेगमेंटाइजेशन है। तो मेरे को लगता है कि इस रेस में मतलब इंडिविजुअली और न्यूक्लियरली फैमिली इज गेटिंग मोर आइसोलेटेड, और बच्चों का जो ग्रोथ है, द हेल्दी अप्रोच और स्किल बेस्ड अप्रोच, एजुकेशन मैटर मोर, हेल्दी लाइफ मैटर मोर, हेल्दी माइंडसेट मैटर मोर। और इनफैक्ट इसके अलावा जो मोरल बूस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी, फैमिली, स्टेट्स एंड कंट्री दैट बिकम ग्लोबली द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। राइट नाउ वी आर ग्रोइंग 7.26 5% एज द IMF रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल जब हम देखते हैं ना, तो इट्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हम मतलब we are being getting healthy, happy and mentally sound and strong, that we can take the risk, and we are building some R&D, IPR, and we are developing the scalability approach of manufacturing, hardcore manufacturing, that is undoubtedly based on R&D. उसके लिए तो बेसिक लेवल का जो सेगमेंट है, फॉर्मुलेशंस है, लाइफ स्टाइल है, वी हैव टू क्रिएट दैट इनसिग्निफिकेंट। बच्चों का हेल्दी होना, सोसाइटी का हेल्दी होना, हर लोगों का एक अप्रोच पे आकर के सोचने कि हम अपने फैमिली से हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम क्या बेहतर चीज़ कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्टेट्स के लिए, अपने कंट्री के लिए। ओवरऑल द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द वे ऑफ लर्निंग एंड द वे ऑफ एजुकेटिंग, इट्स ऑल ओवर कलेक्टिवली मैटर मोर। और मेरे को आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल द मिडिल इनकम पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इनफैक्ट किसी मतलब अच्छी चीज़ की शुरुआत जो है ना, मतलब हम मतलब आज 1 जनवरी है और हम आज से कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मैंने बोला कि मतलब वाइट शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, दे आर द मेजर सोसाइटी obnoxious things that can alter the entire generation. मे बी द फूड सेगमेंट ये है, एजुकेशन सेगमेंट में अलग अलग स्किल्स है। तो मेरे को लगता है कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो है ना इम्प्लीमेंट करके जो है ना द वे ऑफ 0.1% डेली impactful activity, that matter more. और मेरे को लगता है कि the way I am thinking and I have expectation from my own people who want to build a healthy society, healthy community, healthy states and healthy country, it will take time, but it's a long marathon. And long marathon we have to if we are performing, we are performing. If we are not performing, we are rebuilding and re-engineering our body, brain and mind. तो मेरे को लगता है one of the best line that I had read that our late president
और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिस्टर अबुल कलाम, APJ Abdul Kalam sir. He had right in India at 2020 dreams that he was expecting that 70 to 80% of middle income community that become more aspiration and more strong in the terms of education, health, mindset, and SOP of creating wealth for entire country and entire India. That he had tell the स्वर्णिम काल कि हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल तब लौट करके आएगा जब हिंदुस्तान के जो मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास इनकम है ना, वो सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आप को शिक्षित कैसे करें, हम अपने आप को सिखाएं कैसे, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाएं। और ये तभी हो सकता है जब हम कलेक्टिवली जो है ना एक पॉइंट पे आकर के हम सोचेंगे कि हमारे को एजुकेशन अच्छा मिले, लर्निंग अच्छा हो, हम कोई ना कोई स्किल सीख करके अपनी सोसाइटी में बेटर इनकम और बेटर लाइफ। एंड मिस्टर कलाम सर इज़ द नॉट वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, आई थिंक ही इज़ द वो भारत के इंस्पिरेशन है। और I have a great respect for their vision, that what he had done for our country, he had made and he had served our country very the way he had मतलब हिंदुस्तान का तिरंगा जो है ना, जिस तरीके से डॉक्टर कलाम साहब ने लहराया, आई डोंट थिंक दैट मे बी दैट सम ऑफ आफ्टर दैट उनके बाद कोई जो है ना 0.1% भी कंट्रीब्यूट किया। बट मेरे को लगता है कि द बुक ही हैड रिटन द इंडिया ड्रीम 2020, तो मेरे को लगता है कि इट्स ए ग्लोबल एंड कलेक्टिवली इट्स आवर टाइम कि हम सारे लोग ना एक कलेक्टिव पॉइंट पे आकर के हम सोच सकते हैं कि हम अपने आप को बेहतर करें, शिक्षा की बदौलत, अच्छे स्वास्थ्य के बदौलत, अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंड के बदौलत। और कलाम साहब के सपनों का भारत, मतलब मेरे को लगता है कि दृढ़ संकल्पित भारत का जो है ना एक नई इबारत और नई तारीख जो है ना, और मिस्टर कलाम सर के सपनों का भारत और दृढ़ संकल्पित जो भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, मेरे को लगता है कि इट्स ए गुड टाइम और हम शुरुआत कर सकते हैं एक बेहतर इंसान बनने का, अपने आप को शिक्षित करने का, अपने आप को स्किल सिखाने का, अपने आप को पर डे एफर्ट मार करके सीखने का। और इट्स ए बिकम डेवलपिंग टू डेवलप, इट्स ए लॉन्ग टर्म ऑफ मैराथन। और जो चीज़ चाइना ने 30 साल में किया है, अमेरिका ने 70 साल में किया है, मे भी हमारे को करने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि वी आर द एज ऑफ 5G और 6G। और हम हमारे पास जो लेवरेजिंग कैपेसिटी है, हमारे पास जो लर्निंग कैपेसिटी है, और हमारे जो यूथ है, दे हैव द स्केलेबिलिटी एंड द लर्निंग टेंडेंसी। तो मेरे को लगता है कि वी कैन स्केल ऑल ओवर द इकोनॉमी फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट एंड वी आर द मोस्ट इफिशियंट जनरेशन। और आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड दिस इज द डे दैट आई कैन एक्सपेक्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट आई हैव रीड एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर पॉपुलेशन। और दिस इज द मतलब टुडे the day that we can expect that we can implement, we can be better 0.1% every day and what we are expecting for our society. that मेरे को लगता है कि एक उम्मीद जगाई जा सकती है कि हम अपने आप को और सभ्यता को कैसे बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा के बदौलत, R&D के बदौलत, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के बदौलत, और अपना जो एक सोचने का नज़रिया है, हम सोसाइटी को देखते कैसे हैं, हमारा 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 बेटरमेंट कैसे हो सकता है, हम अपने लाइफ में आउटपुट जो ROI है, हम सोसाइटी के लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, दैट विल क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट। और मेरे को मतलब आई हैव ए ग्रेट होप फॉर दिस कंट्री, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ दैट मिडिल इनकम कम्युनिटी। और मेरे को लगता है कि ये लोग देश चला रहे हैं तो शायद ये लोग इकोनॉमी भी चलाएंगे, और आने वाले वक्त में एस्पिरेशनल मिडिल क्लास बिकम द टॉप लीडर्स, टॉप कम्युनिकेटर एंड टॉप एक्सिक्यूशंस ऑफ दिस सोसाइटी। और ये आज का दिन है, आज ये प्रण ले सकते हैं कि हम ये, और आज का दिन है कि हम मतलब चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सोचने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, हमारे खाने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, हम अपनी सोसाइटी को कैसे देखते हैं, हमारा सोसाइटी और हेल्दी कैसे हो, साउंड साइकोलॉजिकली कैसे हो, सोचने का नज़रिया बेहतर होने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम कैसे डेवलप करें, हम अपने बच्चों के अंदर R&D और एक्सप्रेशन स्किल्स कैसे डाल सकें। और मेरे को उम्मीद है अपने 70 to 85% जो मिडिल इनकम कम्युनिटी है ना, आई हैव अ ग्रेट होप, रिस्पेक्ट एंड मोर पॉजिटिव इनसाइट्स। और मेरे को लगता है कि मतलब आज 1 जनवरी है और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट 365वां दिन और जो 2025-26 और जो $100 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग का जो ड्रीम है इंडिया का, जो इंडिया विजन 2020 में मिस्टर कलाम सर ने सपना देखा था, क्या हम अपनी सोसाइटी को उस तरफ मोड़ सकते हैं, उस तरफ अपनी सोसाइटी को मोटिवेट कर सकते हैं, उस तरफ मुखातिब हो सकते हैं। एंड विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।